بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا لقد جاءت یا نور اللہ الحدن اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام طیب الاکرام لما فی الوجود امجم المقا نقطة الدار الوجود سبق بالفاتح من المولد الحق بالحق ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیت وطیب الوطائر المعصومین المنتجبین المظلمین الذین عذب اللہ ورجسا واتارہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لعنت اللہ و غاصب و حقوقہن و منکر ولایت و فضائل و مصائب علی ابن ابی طالب اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر روح دل کے بواز بلند پڑھو تم کا غریب آتا اللہم صلی علی اس طرح درود نہیں پڑھا جاتا ہے، درود اس طرح پڑھو کہ شاید نے جب تک جانا چاہیے وہاں جو امت پہ درود دینا ویسے بھی ثواب کا کام ہے۔ 70,000 فرشتے گناہ مٹانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن رکنے میں لگ جاتے ہیں۔ درود اس طرح پڑھو اس طرح آپ کو عبادت کی قبول کرے درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتمداری ماتم حسین شیر مولانا نظرہ قابلہ نواب 1448 ہجری اتفان حسین بن ولی۔ سب سے پہلے میں دعا کروں گا خالق تناس کہ میں قدمان ہوں جو خدا کا محمد کا جلد ضرور فرمائے۔ خدا مند عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ خدا مند عالم جو صدقانے میں چل پائے سب کو اس زمان دے دے۔ خدا مند عالم ہر نیت کے بدلے، ہر سانس بدلے، ہر قدم کے بدلے ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ خدا مند عالم جو کہیں بھی عزاداری حسین کر رہا ہے سب کو بھی ضرور تو عزاداران حسین کے لیے ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ آج کی نشست 7ویں نشست ہے، عزاداری حسین ہے، اور آج کہ نشست علی قاسم کی شہادت امام بارگاہ علی قاسم کی شہادت کی نسبت سے وابستہ ہے۔ امام بارگاہ آپ کے پاس خداوند عالم کی دعا کروں گا بانی مجلس کو سے تو کل طور میں پیارے خانوں آمین ضرور کہا کرو گی کہ دعا آمین کو بتایا جائے۔ تو کل جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہادی خدا چن رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ ہادی وہ اللہ چن رہا ہے جس نے ساری کائنات بنا کر کہا ہے حبیب اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے تھے کائنات کا ذرہ ذرہ بھی خالق نہ کرتے تھے کہ جس رنگ کا کوئی وسیلہ نہیں، یعنی پہلی چیز عذاب پہ اتری یا فضا پہ اتری یا جزا پہ اتری یا عطا پہ اتری یا فضا پہ اتری یا جزا پہ اتری یا جزا پہ اتری یا زبا پہ اتری یا وضا پہ اتری یا فضا پہ اتری یا شریف پہ اتری یا نصاب پہ اتری یا کرا پہ اتری یا عین یا غین یا عدل جنید جو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں کہا تھا جتنا تو پتہ ہے سب کو کرنا تو کوئی ذرہ بھی ہو ایسے لے کے گئے تقیات سے لے کے آتے تجارت جو کوئی بھی ہو یا ایک لے کے جاتا جتنی بھی کائنات میں چیزیں بنی ہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ ہوتا ہے، پر جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا اس کائنات کے ہر ذرے میں ہر عالمین نے ایک وعدہ ضرور لیا، یہ کائنات کو بتا دینے چاہیے ہر ذرے اور عالمین میں میرا نبی کا امتی یا نبی کا مولی کا مومن ضرور ہوتا۔ میں نے کل 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ پہلے کو عشق کہتے ہیں، دوسرے کو مودت کہتے ہیں، پہلے کو عشق
दूसरे को मुवद्दत, तीसरे को मोहब्बत, चौथे को नफरत, पांचवा इससे भी खतरनाक है। और उस पे खून हो तो पता चलता है। जो 5 मैंने लफ्ज बताए अब वापस आए, जो पहले 4 बताए, जजा, अता, जुल्म। जुल्म कम, जजा बाद में, अता उससे भी बाद। या मोहब्बत से मुकाबला होगा या नफरत से मुकाबला। इश्क का ताल्लुक न मोहब्बत से है न नफरत से है, इश्क का ताल्लुक आखिरी दर्जे से है और उसे खून कहते हैं। यहां पर आपकी नजर में एक और लफ्ज लेके आऊं, पर मैंने कहा 5 ये लफ्ज एक तरफ, 3 वो लफ्ज एक तरफ, जुल, जजा, अता। और जो चौथा लफ्ज है वो 2 एक लफ्ज एक तरफ, रहमत, नेमत। सारा दारोमदार रहमत और नेमत पे रह गया। या बात फिर मेरा मुंह वाला है कि अल्लाह क्यों कह रहा है इन्ना तैना, मैंने अता की। और क्या भी बड़े नबी उतरा है, सरदार, सरदारों का सरदार, आलीन, आलीन का सरदार, यानी इतना बड़ा सरदार, दुनिया इधर से उधर भी हो जाए तो वो सरदार में। तो वो लफ्ज इस तरह है जो अल्लाह बार बार इस्तेमाल करता है, पर एक लफ्ज इस तरह जो एक बार इस्तेमाल किया, जज़ा और जुल्म, खुदा बार बार इस्तेमाल कर रहा है कि क़यामत के दिन, यौमुल क़यामत, क़यामत के दिन बदला लो, जिसे यौम जज़ा कहते हैं। अब आइए कुरान की आयत सूरत बकरा की, सूरत बकरा की आयत नंबर उसमें लिखी हुई है। आयतों में अल्लाह कुरान में बार बार, पर इसमें अल्लाह ने सूरत बकरा की 2 आयत सूरत में यक़दी इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़्हिबअनकुम रिज्साल बैती तारदुल्लाह, हमने निजात को अहले बैत को इस तरह दूर कर दिया जिस तरह निजात पहले कभी किसी ने निजात को अहले बैत से दूर कर दिया नहीं, दूर रखा है। जहां पर लोगों ने तर्जमा अलग किया है, इस तरह किया है, मैं नहीं जानता, पर किसी मौलवी ने तर्जमा इस तरह किया हुआ है। पर मुझे उस ने बात की कसम, क्या कहने मुलाने की मेरी मोहसिन नकवी ने शेर खत्म कर, मोहसिन नकवी कहता है इस तरह खुदा ने इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़्हिबअनकुम रिज्सा अनकुम रिज्सा, निजात इन्नमा के यहां पर 2 मतलब है, दोनों मतलब पर दूर लंबे में निजी तफसीर से नहीं पढ़ना जाता। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़्हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत युत्तहिरुकुम तत्हीरा, अहलल बैत का खुदा तत्हीर कह रहा है, यानी जो चाहता है। फिर खुदा ने आयत को लिखी इन्नमा, फिर खुदा बार बार कह रहा था निजात हमने दूर रखा है, कर दिया नहीं। मौलवियों ने यह तर्जमा गलत किया था कि निजात को दूर कर दिया, ये तर्जमा बनता ही नहीं। आप पर बीती जबानी की लुगत लाए, मैं हवाला दिखाता हूं, ना दिखाओ तो फिर क्या कहना कि खुदा कह रहा है मैंने दूर कर दिया नहीं, रखा है। रखने में और कर देने में फर्क है। कर देना उसे कहते हैं जिसमें कोई इजाजत पहले मौजूद हो, उसे कहते हैं कर देना। और रखा है मतलब पहले कभी इजाजत इनके करीब थी ही नहीं, यानी इजाजत आ ही नहीं सकते इनके करीब। ये अल्लाह आयत रख के बता रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़्हिबअनकुम रिज्साल बैती तारदुल्लाह तत्हीरा, हमने इजाजत को दूर रखा, दूर रखा। तो फिर जब अल्लाह कुरान में आयत रख के कह रहे हैं हमने इजाजत को दूर रखा, फिर कुरान में अल्लाह ने इस तरह आयत रखी क्यों है?
اللہ نے پھر قرآن میں طرح رکھی تھی. اب پھر واپس پلٹ کر آؤ نا, میں ایک اور چیز نہ دکھا دوں. مولوی جی مولوی ہر بار وقت میں ملا یہی کہتا رہتا ہے ہم تو مجلس حسین میں نہیں جاتے, آپ بھی نہ جایا کرو, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو بچے لے کے جاتے, بچوں کو دیگوں میں پکا کر دیگوں میں ڈال کر پکا لیتے ہیں, پھر کیا کہنے پھر آپ یا حسین نہ کیا کرو, آپ حسین گھوڑوں کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پھر آؤ ذرا سنو, میں آپ کو حوالہ دینے لگاؤں, تم لوگ آتے نہیں ہو, تمہاری قسمت ہی ماری ہے. اللہ قرآن میں آیت رکھ کے بتا رہا ہے انما یرید اللہ زبان کو مستعمل بیٹھا کو نکلا, ہم نے نچا سکتے والے بیع سے دور رکھا ہے, کر دیا نہیں. اس میں رکھنے میں اور کر دینے میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی نجاست تم لوگ آتے نہیں, اللہ نے تمہیں دور رکھا ہوا ہے, تو کبھی نجاست کے قریب ہے. تم لوگ آتے نہیں, خدا نے خود دور رکھا ہے. اب یہ دور کتنا دور ہے, آئے جزا کی طرف نجاست اللہ کا نے دور رکھا ہے. اب یار اب یہی بتا رہے آپ یار یہی بتائیے دور کتنا دور ہے. اچھا بنی آواز کو کرتا ہے اتنا دور کہ یوم الجزا یعنی قیامت کے دن پورے کا پورا میں بدلا لوں گا, اتنا دور. اچھا پھر بتا کر چلو آدم نے کہا تھا قیامت قریب ہے, نوح نے کہا تھا قیامت قریب ہے, نبی نے کہا تھا قیامت قریب ہے, ادریس نے کہا تھا قیامت قریب ہے, موسیٰ نے کہا تھا قیامت قریب ہے, یونس نے کہا تھا قیامت قریب ہے, یوسف نے کہا تھا قیامت قریب ہے, یعقوب نے کہا تھا قیامت قریب ہے, ادریس نے کہا تھا قیامت قریب ہے, داؤد نے کہا تھا قیامت قریب ہے, سلیمان نے کہا تھا قیامت قریب ہے, ابراہیم نے کہا تھا قیامت قریب ہے, اسماعیل نے کہا تھا قیامت قریب ہے, عیسیٰ نے کہا تھا قیامت قریب ہے, موسیٰ نے کہا تھا قیامت قریب ہے, موسیٰ نے کہا تھا قیامت قریب ہے, عیسیٰ نے کہا تھا قیامت قریب ہے, حضرت محمد مصطفیٰ یا کہ جرداروں نے کہا تھا قیامت قریب ہے, یا سلطان نے حضرت مصطفیٰ نے کہا تھا قیامت قریب ہے, نبی کے بدل وزیر کا تھا قیامت قریب ہے. کیا کہتے ہیں اگر داری علی حسین سے بھی بل کا تھا تو قیامت قریب ہے, امام حسین نے کہا قیامت قریب بل کے اتنا کا دعا قرآن کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے. جس کا قریب اتنا قریب ہے اس کا دور اتنا دور ہے. اللہ کے ہاں عدل ہے, ظلم نہیں. اللہ کے ہاں عطا ہے, ظلم نہیں. اللہ کے ہاں بدلہ ہے, ظلم نہیں. بدلہ ظلم نہیں ہوتا, بدلہ جزا بھی ہوتا ہے. بدلہ ظلم نہیں, بدلہ عدل بھی ہوتا ہے. بدلہ ظلم نہیں, بدلہ عطا بھی ہوتا ہے. اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ طرح خدا کہہ رہے میں نے عطا کی. ایک بار بتاتا چلو, دین میں لفظ عطا, قرآن میں لفظ عطا آیا بھی, بار بار خدا استعمال نہیں کرتا. کچھ لفظ عطا کا لفظ اتنا وزنی تھا تاکہ جو عطا کا ایک لفظ آیا. تو آج کی گفتگو میں لفظ دعا کو دیکھتے ہیں. دعا کا مطلب ہے پکارنا, دعا کا مطلب ہے طلب کرنا. دعا کا مطلب طلب کرنا نہیں, مانگنا, طلب کرنا. دعا کا مطلب ہے طلب کرنا, دعا کا مطلب ہے مانگنا, دعا کا مطلب ہے پکارنا, کسی کو پکارنا. یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا دے دی, اسے عطا میں بھی لے سکتے ہو, مانگنے میں بھی لے سکتے ہو, طلب کرنے میں بھی لے سکتے ہو. یہ دعا ہے کیا؟ خدا کہہ رہا ہے دعا لے لی, یعنی میں دعا کی. اللہ کہہ رہے میں دعا اللہ کہہ رہے تم مجھ سے مانگو, آدھی آدھی رات کو مانگو, اکیلے بیٹھ کے مانگو, صف اذا پہ بیٹھ کے مانگو, یہ تہجد کے نماز میں مانگو. میں تمہیں عطا بھی کروں گا, جزا بھی دوں گا, جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وہ اتنا کریم ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ پیار تو اللہ کرتا ہے. اب یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا, دعا کا مطلب ہے عطا کرنا. دعا کا مطلب ایک ہی ہے جو عربی کے لغت میں پرفیکٹ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے مانگنا یا پکارنا. آپ انٹرنیٹ کیجیے, اس کا مطلب یہی ہے. تو آئے ذرا واپس کی چلے, جب اللہ کہہ رہا ہے تم طلب کرو یا مانگو میں دوں گا, تو اس پہ بھی شرط ہے. جو لوگوں نے اعتراض لگایا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے یہاں شرط لگتی ہے, یہاں شرط لگتی ہے, تو پھر یہ بھی سن لیجیے, میں نے جو کل گفتگو جس
जिस जगह पर कहा था शर्त लगती है वो हकीकत में शर्त लगती थी, लगती है, लगती। तो अब दुआ में उन्होंने कहा था किस तरह की शर्त, क्योंकि दुआ में ये शर्त इस तरह लगती है जब दुआ मांगो तो दिल साफ होना चाहिए और हलाल होना चाहिए। जानी उसमें पेट में हराम लुकमा ना गए हो, अगर हराम लुकमा हो तो दुआ कबूल नहीं होती। और अल्लाह कबूल क्या, अल्लाह भी अपने से भी। मैंने कहा रहमत और नेमत में फर्क है। नेमत से मुराद सुकून, नेमत से मुराद जिसमें दौलत ना हो, नेमत से मुराद जो अल्लाह की दी हुई हो, नेमत से मुराद जो तुम्हारे पास हर वक्त मौजूद हो, कोई ना कोई नेमत मौजूद होगी। इसलिए तो जहाँ मुस्लिम है गैर मुस्लिम है उनके हर घर में मौजूद है, ना हो फिर कहना जो उनके लिए नेमत है, जो उनके लिए जितनी नेमत है अल्लाह की तरफ से मौजूद होगी। मुस्लिमों के घर नेमत कुरान है, तो मुस्लिमों के घर नेमत कुरान भी है, रहमत भी है, क्योंकि कुरान नेमत में भी आता है, रहमत में भी आता है। तो मुस्लिमों के घर नेमत मतलब उनको सुकून मिलता है, जो नमाज पढ़ते हैं वो नेमत है, जो रोटी खाते हैं वो नेमत है। अगर नमाज वो पढ़ी है, वैसे तो आजकल के जमाने में पता नहीं मौलवी ऊपर से पढ़ता है, बाकी इदारे से, बाकी दिखावे से पढ़ते हैं, दिखावे से। अच्छा एक जुमला है यहाँ पर, वो पढ़ दूं क्योंकि वक्त नहीं, वक्त गुंजाइश नहीं। एक ना यहाँ पर जुमला है दिखावा, दिखावे से, क्योंकि नमाज नमाज है और नमाज नमाज ही रहेगी। नमाज फिर कहती है जिसके लिए बनी थी वो पढ़ते नहीं, जिसके लिए नहीं बनी थी वो छोड़ते नहीं। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी। मैंने कहा नेमत है, कुरान नेमत है, नमाज नेमत है, हर घर में रोटी है नेमत है, या रोटी की जगह गंदम इस्तेमाल करूं, गंदम कह दूं भी गंदम नेमत है, क्योंकि गंदम से वो भी बनता है, रोटी भी बन जाती है, मैदा भी बन जाता है, आटा भी बन जाता है। गंदम से मैदा आटा दोनों बन जाता है, इससे ना रोटी सब कुछ नेमत है। जो आप घर में सब्जी खाते हैं वो भी नेमत है। ये अल्लाह की तरफ से नेमत दी हुई है, रहमत नहीं। अब वापस पलटिए, मैंने कहा था बेटा नेमत में शुमार होगा, रहमत में नहीं, क्योंकि बेटा फरमाबरदार हो तो घर में बरकत पड़ती है और विरासत का वारिस भी बनने के काबिल बन जाएगा अगर बेटा फरमाबरदार हो। पर बेटा ही फरमाबरदार ना हो तो फिर नेमत का हकदार भी नहीं। पर बेटी वो है जो नेमत और रहमत दोनों में शुमार होती है। बेटी रहमत में भी शुमार होती है, नेमत में भी शुमार होती है। कभी सोचा ऐसा क्यों है? बेटे पे अल्लाह रहमत क्यों नहीं करता? यार अब बेटा दिया है नेमत, खुदा कहता जब नहीं बड़ों के नूह के जैसा बना, नूह के बेटे की जैसा बना, फिर बड़ों के नूह के बेटे की जैसा बना, फिर और जो बेटी दी मैंने कहा यार अब अगर ये गुनाहगार बन गई, फिर खुदा कहता गुनाहगार बन भी गई तो मैं रहमत के दरवाजे इसलिए तो घर से खोले हैं क्योंकि बेटी है। जितनी मर्जी गुनाहगार हो कभी बाप के खिलाफ नहीं जाए, कभी बाप के खिलाफ नहीं जाएगी। मैंने कहा जब नहीं आवाज कुदरत है यार अब इतने बता दे बेटी बाप के खिलाफ क्यों नहीं जाएगी, बेटा बाप के खिलाफ चला जाएगा। कहा जब नहीं बेटी बाप के खिलाफ नहीं जाएगी। मैंने कहा यार अब बता दे बेटी बाप के खिलाफ क्यों नहीं। कब बेटी इसलिए बाप के खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि जो उसके दिल में दिल बाप के दिल और जो बेटी का दिल है वो इस तरह है जिस तरह संगे मरबत, जिस तरह काफे का दिल अज़ा, जिस तरह काफे का दिल नमाजी से होता है, या फिर इस तरह मस्जिद का दिल नमाजी से। मैंने कहा यार अब इतना ही बता दे बेटी गुनाहगार तो फिर रहमत के दरवाजे किस तरह खुलेंगे। कहा अजब नहीं बेटी गुनाहगार हो भी सही, बड़ी होके बाप की कातिल नहीं बने, आपकी कातिल नहीं बनेगी। मैंने कहा यार क्यों? बेटी है तो बाप की कातिल, बाप की बन सकती है, बाप की नहीं। जितना मर्जी गुनाहगार हो बाप की नहीं बनेगी। मैंने कहा यार किस रंग में बेटी गुनाह,
इसलिए बेटी नेमत में भी आती है, रहमत में भी आती है। बेटी नेमत और रहमत में किस तरह आ गई? अगर तो गुनाहगार नहीं, फिर रहमत में भी है, नेमत में भी है। पर अगर गुनाहगार है तो फिर रहमत में ही रहेगी, नेमत में नहीं। क्योंकि बाप जितना मर्जी हो, बेटी ने वफा नहीं, पर बाप बेशक हम पाना नहीं, बेटी निभा जाती, बेटी को पूरी रहमत और नेमत पे। आप किताब उठाएं, आपको पता चल जाएगा यार। अब आजकल के दुनिया के जिस तरह हालात है, बन जाएंगे, जितनी मर्जी बन जाए, बाप बन सकता है, बेटी नहीं बन सकती। क्योंकि बेटी वो है, बेटा वरासतों के वारिस होते हैं, बेटी जनाजों की वारिस हो। अभी मैं फजाइल पे हूं तो इश्क की मंजिल पे मैंने कहा था, पहला इश्क है, दूसरी मुवद्दत, तीसरी मोहब्बत, चौथी नफरत, पांचवा खून, और पांचों में फर्क है। इश्क का ताल्लुक खून से है, मोहब्बत का ताल्लुक मुवद्दत से है, नफरत का ताल्लुक मोहब्बत से है, मुवद्दत का ताल्लुक इश्क से है, और इन पांचों में फर्क है। जिंदगी रही इंशाल्लाह कल के इस मौजूद को आगे बढ़ाएंगे। आज के नहीं, आज एक और फातिमा का लाल मारा, फातिमा का बेटा दो दिन रहमान खाने में ली जाए। आज उसकी शहादत है जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी, जिसे निकासिम कहते हैं। तो हम एतराज करते हैं ये मेहंदी क्यों निकलती है? अली अकबर का पता ताबूत निकालते हो, टेरे निकालते हो, अलम निकालते हो, गांधी पास का ईस्टर का झूला निकालते हो, पर इतना बताओ मेहंदी क्यों निकलती है? तो आए आज बताता हूँ। जिस एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा था, जिसे कहते हैं, सबसे पहले ही उतरने की उसके जिसने उसने कहा था, एक माँ की हसरत से अली कासिम की मेहंदी निकाली तो सबसे पहले करे। तो अली कासिम की मेहंदी निकली ना, लोगों की मेहंदी क्यों निकालते हो? ये लोगों को बताने देना, फिर वो माँ की हसरत तो होगी ना, जब मेरा बेटा जवान होगा मैं फेरे देखूंगी, मेहंदी पहना। करबला में ना एक जगह गाजी अब्बास और अली अकबर कह रहे थे, और अली कासिम बातें बोलो। गाजी अब्बास अली अकबर से कह रहे, अकबर कल सबसे पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर कहते थे, नहीं भैया सबसे पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर अब्बास कहते थे, अकबर तू गया तो बाबा की बनाई, तू गया तो भैया हुसैन की बनाई चली जाएगी। अकबर अब्बास कहते, भैया चाचा अब्बास आप जाए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। फिर कासिम खड़ा था, कासिम ने कहा, चाचा अब्बास न आप जाइए, न अली अकबर भैया आप जाइए। ऐसा करता हूँ मैं हसन का यतीम हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं इतना खड़ा था, तीनों को बातें करते हुए देख ने आपकी कभी अकबर कासिम का दाया हाथ चूमा, कभी बाया हाथ चूमा, कभी माथा चूमा, कभी चेहरा चूमा। चुप कहते, कासिम ना तू मुझे अकबर से भी ज्यादा प्यार है, बाप से भी ज्यादा प्यार है, तुझे मेरी तू मुझे हूबहू हसन लगता है। बस 4 मिनट की गुफ्तगू खत्म, हूबहू मुझे हसन लगता है। इतना कहना था तो मुझे हूबहू हसन लगता है। अब अली कासिम खड़ा रोक के बैठा हुआ, रोकता हुआ भी जाता है। 3 बरस हसन ने पाला अली कासिम को, और बाकी के 10 बरस हुसैन ने पाला, और इस रंग में पाला कि कभी बाप की कभी रोता हुआ गया ठहने में, और रोता उन्हें परवाह देख लिया, परवाह देख जाती है। कासिम खैर से बेटा रो दो, कासिम रो करता है, कम्मा चाचा इजाजत नहीं देते ढंग की। परवाह ने बेटे को चूमा, इस चोटती कभी माथा, कभी चेहरा, कभी हाथ, क्योंकि बेटा रोना अगर मैं इजाजत ले वादा कर लेने के रंग में ना कि हसन को जमीन की जो लोग बातें बनाते कहते तेरे बाबा को लड़ने नहीं आता था। अम्मा वादा करता हूँ झांक इजाजत होने दे, हर किसी की लाश खैमे में आएगी, पर तो कासिम की लाश खैमे में नहीं आएगी। कासिम को लेके हुसैन के खैमे में फरवा गई। अब हुसैन ने जैसे ही देखा ना, तो हुसैन देख का भाई का भाभी आपको ये मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तो कासिम फरवा कहते नहीं भाई नहीं, हुसैन मुझे काम था, मैंने कहा मैं आऊंगा।
हुसैन मुझे काम था, मैं हूँ, मुझे काम था, मैं कब बोलो भाभी क्या काम है। अब परवान ने डरता तो हुसैन देख करते बोलेगा। हुसैन ने दाएं हाथ पे कासिम को तवीज बंधा था, वो तवीज को तार और परवान का ये तवीज है तो वो दिया था। अब तवीज सबसे पहले खोला हुसैन ने, न परवान ने खोला था न कासिम। अब रिवायत तो मुख्तलिफ किताबों में लिखा, वही पढ़ रहा हूँ। अब जब हुसैन ने तवीज खोला तो उधर लिखा हुआ था हसन। जब भैया का तवीज पड़ा तो हुसैन के अश्क बहाने शुरू हुए, अश्क निकलने शुरू हुए और कहा हसन। हुसैन ने हसन की तरफ रोता बेतवीज बताया और उसमें जो वसीयत लिखी थी दूसरों से परवानी एक से कर देता हूँ ना, कभी मैदान करबला में जरूरत पड़े तो काशी को दे देना और हसन समझ के इसको दे देना और चल मैं अपने घर कुर्बान करने हसन तो होगा नहीं। हुसैन रोक हसन को ले आज भी भाई जब तेरा नहीं समझा अपने घर में दीवार बला उठा के हुसैन से याद रख। अली अकबर के बाद जब कासिम को भेजा जंग में, फरवा को कहा बेटे को तैयार कर, तैयार किया। तैयार करने के बाद आया कासिम को दीन पहना, जेरा पहना, इस तरह होते। अब हर किसी ने करबला में जाते हुए ना, अब कासिम को जेरा पहनाई तो देखा तो जेरा छोटी थी, क्योंकि कासिम के साइज की बनी नहीं थी। अब कासिम को जेरा काट रख दी। अब जो इस तरह तैयार किया कासिम को, अब्बास ने कहा भैया भैया उठाए जेरा को नहीं आ, कैसा कर मेरे वाले लिबास है। लिबास बनाया, लिबास बना के तैयार किया और घोड़े बैठाया, घोड़े बैठाया जिस तरह अपने अकबर लिए भर के बुरे इशारत हुसैन ने बिठाया भी था, उतारा भी था, वही अली कासिम के साथ पहले बिठाता है फिर उतारता है फिर चूमता है। अब कभी सीना चूमता है, कभी हाथ चूमता है, कभी माथा चूमता है, हुसैन ने चूमा। कासिम लोग कहते चचा अगर नहीं भेजना तो भेजे ना, पर ये पता चूमते क्यों है। अब कासिम की तरह बेटा नामे नाना ने अली का फर्ज, मेरे नाना ने अली को चूमा था और कहा था कि अली तेरी दाढ़ी जो तेरे को लगा होगी, पर मुझे मेरा बाबा चूमता था और क्या कहते हुसैन मेरी दाढ़ी तो मेरे को लगा होगी, पर तेरी दाढ़ी कभी अलियत फट खोल से, कभी अलियत कर खोल से, कभी कासिम के खोल से, कभी काजी खोल से, और क्यों क्यों कहता था हुसैन कासिम तू बड़ा नरम है, जिस्म बड़ा तू बड़ा नरम है, घोर तो तुम बड़े सख्त है, तू बड़ा नरम है, घोर तो तुम बड़े सख्त है। अब फैलाया फिर उतरे, बीबी सकीना आ गई, काशी भर किसी को मिले बहना को मिले। अब भैया को चुना, इस्लाम भैया को चुना, सवाल कराया। अब कासिम सवार हुआ, अब कासिम सवार हो गया था, चले घोड़े पे बैठे, कासिम को बिठाया। अब कासिम जैसे मैदान में गया, तादाद मुख्तलिफ लिखी है कि हजारों के तादाद में कासिम ने केले ने मारा। अब हुसैन देखता है, गाजी अब्बास देखता है, अब्बास का शरीर था, जैसे कासिम मारता था अब्बास पीछे कहता था कासिम ऐसा कर यहां था। अब एक अरजक नामी शख्स है, शामी अरजक नामी शामी शख्स है। अब अली कासिम ने से मारा तो इसके बेटे ने इसे और इसके बेटे को मार दिया। तो वहां से उमर इब्न साद ने ना कहा ये हाशिमी खून है, ये ऐसे नहीं मारो, ऐसा करो इसे धोखे से मारो, जिस तरह मारोगे ऐसे, अगर वरना ऐसे लड़ता रहा तो इतने 9 लाख में वजन होगा, ये हाशिमियों का खून ऐसे नहीं, अब धोखे से मारो। अब हुआ क्या, किसी बगैर लानती ने आवाज मारी, कासिम तेरे मां के खैमे को आग लग गई। जैसे कासिम पीछे मुड़ा, किसी लानती ने पीछे से नेजा मारा, कासिम का गिरना था। अब जैसे कासिम गिरफ्ता है, देखा कि भीड़ में कासिम गुम हो गया, नजर नहीं आता। अब घोड़े कभी वहां से गुजरते तो कभी सैन ने कहा घोड़ा तैयार कर, आज कासिम का बदला लूंगा। अब अब्बास ने कहा से ये वाइड मौका जहां पर हुसैन ने कबास लड़,
عباس کو تلوار اٹھائے میں کبھی ادھر سے باہر آتا ہے کبھی ادھر سے اٹھائے. اب دائیں گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب اور اکیلا قاسم بیچ میں گھوڑوں کے اوپر قاسم اوپر سے گھوڑا گزرنا تھا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. اب حسین گھوڑے اترے. اب حسین نے جیسے دیکھا آواز مارتا رہے قاسم آواز نہ تھی قاسم آواز چچا پکار ہے آواز نہ تھی. پھر قاسم نے آواز حسین نے قاسم آواز دو. اب 2 مرتبہ حسین نے بلایا نہیں. تیسری مرتبہ حسین نے کمر سیدھی کی کمر سیدھی کر کے کہتے قاسم وقت امام بلا رہا آواز کوئی ٹکڑا قائد اٹھا کوئی ٹکڑا قائد سے. اب حسین گٹری بناتے ٹکڑا اٹھاتے ہیں ایک ٹکڑے کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹکڑا بھی آ جاتا. اب پیچھے دیکھتا کہنے لگا کون ہے جو مجھ غریب مظلوم کی مدد کر رہا ہے. اب اتنا کہنا تھا جیسے کہا کون ہے جو مجھ غریب مظلوم کی مدد کر رہا ہے. اب ٹکڑوں کی چنتا کرنا آپ کا بھائیا ہوتا ہوں بس آپ کہتے کر میں دیکھ رہا تھا جیسے قاسم زین گرا. اب گٹری کو بنایا کہنے کی طرح پرواہ کروا ہو اور قاسم کو پرواہ روک کہتے قاسم نہیں آیا بھائی ان کا کام حسین قاسم نہیں آیا کہ یہ ہے کہ یہ میرا قاسم دین زمین دین پہ تھا قاسم تھا زمین